नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। ये पूरा सीजन जो है नवरात्र का, जो ये फेस्टिवल है, त्योहार जो है, आप सबके लिए खुशियां लाए, दुश्मनों का नाश हो, सर्वनाश हो, पाप धुले इस पूरे के पूरे देश से, पूरी दुनिया से, और जहां जहां पर जंग चल रही है वहां पर शांति की पुनः स्थापना हो। हम तो सिर्फ इसी बात की दुआ कर सकते हैं, इसी बात की प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। क्यों प्रदीप जी? एग्जैक्टली सर। द एनर्जी, द पूरी शक्ति जो आपने कहा कि पूरे जगत यूनिवर्स में जो फैला हुआ है, वी मेक द अल्टीमेट यूज ऑफ दैट, एब्सोल्यूट यूज ऑफ दैट। जो सच्चाई और नेक रास्ते पर चलना और काम, गरीब जो पुअर एंड डाउन ट्रॉडन, जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं, गरीब से गरीब लोगों का सेवा करना। What he said makes a lot of sense. What Modi ji said, there are no castes. बिल्कुल, there are only rich people and poor people. Exactly. सीधी बात है साहब। अमीर हैं और गरीब हैं और मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, ऐसा मोदी जी ने कहा है। सीधी सादी बात है। और दूसरी चीज है, everybody is very impressed with the manner in which Mr. Modi said that we stand by Israel. Exactly. हम लोग इजराइल के साथ खड़े हैं आतंकवादी हमलों के खिलाफ, क्योंकि भारत ने ये सफर किया है। हमें मालूम है क्या पीड़ा होती है आतंकवादी हमलों की, और हमें मालूम है जब दुनिया के लोग जो हैं, बाकी लोग जो हैं, ऊपर नीचे करते हैं। सो unequivocally the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, said that we stand by Israel. Exactly, sir. And the whole of India stands by him. Let's be very clear. क्योंकि साहब देखिए, हम लोग, भारत की विदेश नीति क्या है? फिलिस्तीन को अपना स्वतंत्र देश मिलना चाहिए, वी एग्री। लेकिन जो हमस है, जो आतंकवादी हमला उन्होंने इजराइल पर किया, द टेररिस्ट एक्शन ऑफ हमस on innocent Israelis, people who were attending a music festival. You killed kids, you murdered kids, you kidnapped kids, you stripped women and tied them up onto trucks, spat on them with your feet on top of them, और उसके ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि आप ये इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं। लानत है तुम पर। And you slaughtered small infants, which is terrible. Nobody in the world. In fact, as you said, one of the main clerics from India said that this is not Islam. He said this is not Islam. He said very very clearly, आप इस्लाम के नाम पर जो काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, because it says so in the Holy Quran. It says so as far as the Prophet Muhammad, may peace be upon him, what he said very clearly. Even during war, you cannot attack old people, you cannot kidnap them, you cannot attack women, and you cannot attack children. This is what the Prophet of Islam himself said. So how are you Islamic? I mean, this is terrible, absolutely terrible. Right, do we have Mr. Atul Shah with us? I believe we have Mr. Atul Shah of the BJP with us. Is he with us? There we go again. I thought Mr. Atul Shah was with us. So why do we have to wait for another 5 minutes? Which is very strange. Sir, Sharad Pawar he raised the issue about Palestine. Yes. He said, we are with Palestine. Now Sharad Pawar says his sentiments are with Palestine. He says right from Indira Gandhi and all the other prime ministers that we had told the line that we have to be with the Palestine cause. Now Sharad Pawar ji is prakar se bolna. He is always, where things are. He always, when Narendra Modi ji tha, Pawar sahab has always taken a balanced step, Sharad Pawar ji. But here, he wanted to differ. No, but the point is, Mr. Sharad Pawar has not said anything different. The fact remains that the government of India has also come out with a proper statement that we are with the Palestinians. We are with their struggle to have an independent nation of their own. That has been India's position right from day one. So it is not as if Mr. Pawar has said anything new. He may not have condemned Hamas, which is very strange. I don't know why. But then after all, do remember, Mr. Pawar is the same person who on March the 12th
1993 talked about a fifth bomb blast, if you remember that. Exactly, sir. So I'm not surprised. उसमें कोई सरप्राइजिंग बात तो है नहीं कि जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, राष्ट्रवादी का सवाल है, उनका तो मतलब थोड़ा रुख जो है ज़रा अलग ही रहता है। लेकिन वो किसको आप अपील करने की कोशिश कर रहे हैं? भैया आज भारत का जो मुसलमान है वो भी बड़ा हो गया है, उसको भी मालूम पड़ गया है कि उनके इंटरेस्ट कहाँ हैं। तो ये सब आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क नाउ। आई थिंक इन फैक्ट it might work against it might work against Mr. Pawar and the NCP, because what are you trying to do? क्योंकि देखिए साहब, आतंकवादी आतंकवादी हैं, आतंकवादी हमला है, और अगर कोई ऊपर नीचे करेगा वहां पे इफ एंड बट करेगा तो पूरे देश की जनता उसको माफ करने वाली नहीं है। सीधी सादी बात है प्रदीप जी। हम लोगों ने 26/11 देखा है, उसके पहले हम लोगों ने देखा है यहाँ पर क्या हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया का बम ब्लास्ट, मामलदारी रोड का बम ब्लास्ट, अलग अलग जहाँ पे गाड़ियों में बम ब्लास्ट, 6 जुलाई वाले दिन, 8 जुलाई वाले दिन बम ब्लास्ट हमारी वेस्टर्न रेलवे के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं देखा है। तो अगर कोई भी आज आतंकवाद के ऊपर कोई नरम रुख अपनाएगा तो जयराम जी की सीधी सादी बात है, आपका भी राम नाम सत्य होने वाला है। फिर let's go across to Mr. Atul Shah. Mr. Atul Shah with us right now. Atul Shah साहब नमस्कार। आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मुझे मालूम था कि मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही होगी जी। अभी ठीक है सर? हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही है, थैंक यू वेरी मच सर। सो अतुल शाह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं हमास के खिलाफ, और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। लेकिन शरद पवार जी की तरफ से आज जो स्टेटमेंट आई है, वक्तव्य आया है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, इट इज द सेम, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, लेकिन उन्होंने हमास को कंडेम नहीं किया है। अतुल शाह साहब, मैंने यही दिस पीपल, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात हो रही है जी। हमास जो क्रूरता की है उसको तो कंडेम करना चाहिए था जी। ने तुरंत 2 घंटे के बाद कंडेम किया था। ये सारे मुस्लिम मतों के लिए सब राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है जी। और आप तो देखो फ्रांस में वो हमास के फेवर में आंदोलन कर रहे थे, फ्रांस गवर्नमेंट ने वो नहीं होने दिया जी। ये देखने की बड़ी मांग आ रही है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि वी आर एंटी टेररिस्ट, यस, हमास के विरोध में है, सारा देश उसके पीछे रहना चाहिए। धर्म तो बाद में आता है जी। ये आतंकवादी का तो हमने इतना सालों से झेला है, और आगे क्या होगा तो हमने तो हमास का विरोध किया है और सारे लोग विरोध करेंगे। सर पूरा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है इसका। और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनको वोट मिलेगा ये कह के? आवाज क्या है? Can we do something about the audio, please? Pradeep ji, why don't you try ask Mr. Atul Shah, perhaps your mic might work. No, I didn't understand. The question said, the second question that you asked him was why Does vote bank politics? He's talking about vote bank politics. Do you think Muslims will actually vote for the NCP if he talks like this? I mean, this is terrible. Atul Shah Sahab, Atul ji, can you hear Badal Sahab? He said, do these vote bank politics really affect now? Does it materialize now? Unfortunately. So, This is amazing. I mean, oh God, we've been getting this audio problem now for the last 3 or 4 days every day. There has been an audio problem. I don't really know why. हर रोज कोई ना कोई ध्वनि में कोई प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों की। लेकिन प्रदीप जी, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में भारत का मुसलमान किसी ऐसे शख्स के लिए या किसी ऐसे संगठन के लिए वोट करेगा जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा होगा। सीधी सादी बात है। You have to condemn terrorism unequivocally without any ifs and buts. Let's be very clear. Exactly, sir. Exactly. I mean, things are changing now. If you see the entire, अब हर चीज देखो now. If you take an example of a Pakistan India Pakistan match, जी, आप वहां के पूरे क्राउड के मेंटालिटी आप देखिए. It is clearly assertive. It is totally nationalism जो हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रवाद को एकदम स्पिरिट है पूरे हर व्यक्ति में, and they are not going to tolerate anything against the interest of the country.
in words, in gesture, or in any methods that you talk about. So the mood of the nation is absolutely clear. The days of appeasement seems to be over. And if you still think of utilizing the same appeasement rules as on today, it is going to fail. It's not going to succeed. Absolutely. So political leaders have to wake up. Wake up. I think India Alliance understood when Mallikarjun Kharge first, the Congress total statement was that it denounces Hamas terrorist attacks on Israel. That's what it said. But then after 2 days, when they came out with another statement supporting Palestine cause, there was a huge upheaval in the social media. Yes. And then the mood of the nation was there, but the India Alliance wrote to Meta that the social media hatred posts is hurting the sentiments of disharmony, harmony, and disharmony is causing more disharmony, hatred. So you need to control it. So the mood of the nation is absolutely clear, sir. Where terrorism is concerned, sir, there can be no Mr. Modi's compromise. statement. Sir, there can be no compromise on terrorism. Let's be very clear. We have suffered from terrorism over so many years. In Mumbai, we've had so many terrorist attacks right here in front of you and I. We have seen it ourselves. We have covered it ourselves. We have reported on it ourselves. हिंदुस्तान में और बम को ये मालूम नहीं होता कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है. सीधी सादी बात है, याद रख लीजिए. बम को ये मालूम नहीं होता. जब बम फटता है हर एक कोई मरता है उसमें, बच्चे भी मरते हैं. I mean, this is absolutely terrible what is happening right now. And by the way, the reaction that took place on Meta, as in Facebook, WhatsApp and Instagram, also took place because there were some idiots, some people in UP, some people in Bihar and elsewhere, and in Kerala by the way, who were writing in favor of Hamas. Hamas के फेवर में लोगों ने शुरू किया बोलना, लिहाजा सामने से रिएक्शन तो आएगा ही. दूसरी चीज, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान साहब, वो पहले नमाज पढ़ने लग गए फील्ड के ऊपर और फिर उसने कहा कि आई डेडिकेट दिस विक्ट्री टू पैलेस्टाइन एंड हमास. अगर इस तरीके की अगर आप बात करेंगे तो सामने से जय श्री राम का नारा तो लगेगा ना भाई. ये हिंदुस्तान है. मेरा ये कहना है, अहमदाबाद में जय श्री राम के नारों पर आपको ऑब्जेक्शन है. पाकिस्तान के हर स्टेडियम में जब अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे, हर क्रिकेट मैच में, अब तो खैर बहुत अच्छा है कि हिंदुस्तान वहां जाके टूर नहीं करता है, इन एवरी टूर ऑफ इंडिया यू नेम वन मैच इन विच द पाकिस्तानी टीम हैज नॉट बीन वेलकम्ड बाय द होम क्राउड विद अल्लाहू अकबर. एंड दीज सेम गाइज हु आर राइटिंग अगेंस्ट दैट, अगेंस्ट जय श्री राम टुडे, दे हैड नथिंग टू से अबाउट व्हाट द इंडियन क्रिकेट टीम हैड टू फेस. I mean, these are double standards. These are absolutely terrible standards. And today's India will not tolerate that. सीधी सादी बात है. अगर पाकिस्तान में अल्लाह अकबर ठीक है स्टेडियम में, तो यहाँ पे जय श्री राम भी ठीक है भाई. सीधी सादी बात है. Exactly, sir. Exactly. So now the BJP is not wrong when they highlight that 2004 से लेकर 2014 तक India faced what Israel is facing now. Yes. They were very, very clear. And after 26/11, the BJP statement is that only way we retaliated was by giving dossiers, file pe file, de rahe Pakistan ko, these are terrorists, please act on them. That's why when Mr. Modi talked about Israel's right to retaliate against terror attacks, he was absolutely clear. He said, we need to hit them the way we hit in surgical strikes, we need to hit them the way we hit them in Balakot strikes. Now, this is what a resurgent India is all about. We are not going to tolerate. We are not going to tolerate. और 2004 से लेके 2014 तक जो बीजेपी का कैंपेन है कि India face the brunt what Israel is facing now. Were they wrong? They were not. 2008. I think we've got Mr. Atul Shah Delhi back. blast. Yes. I think we've got Mr. Atul Shah back. Mr. Atul Shah, can you hear me now, sir? Yes, it's clear now. Thank you very much, sir. So all I'm saying is, today's India is not going to stand for anybody who has an ambiguous attitude to terrorism. तकमत के ऊपर अगर ऊपर नीचे कोई करेगा तो आज का भारत उसको टॉलरेट करने वाला नहीं है साहब. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है राजीव जी. जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2008, 2011 ये जो बॉम्ब ब्लास्ट एक हुए श्रृंखला पे श्रृंखला, मगर 2014 के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई है. इसका कारण है कि गवर्नमेंट सतर्क है और जहां पर भी अपने बॉर्डर पर जो अटैक हुआ पुलवामा, वहां पर तुरंत बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया. जी. तो दिस शुड बी, बट फिर भी
ये थ्रेट जिससे टेररिस्ट की है ये लोग समझ नहीं रहे हैं। अपने वोट की राजनीति के लिए ये सोच नहीं रहे कि क्या होने वाला है। अगर आज सारा हिंदुस्तान एक होकर सारी लीडरशिप, तो किसी की ताकत है? ये चांस दे रहे हैं ऑपोजिशन, ये हमास को सपोर्ट करके ये चांस दे रहे हैं कि भाई ये हिंदुस्तान में भी हम कभी कुछ कर सकते हैं। बड़ा डर लगता है, मगर गवर्नमेंट नया भारत है, वी हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, और सारी चीज़ों में मोदी जी की सरकार ये सारी चिंता करती होगी। ये पूरे देश के जनता को विश्वास है उनके ऊपर। You know, Atul ji, 2000 BJP is highlighting this very fact that Congress is soft. Congress was soft on terror. Rashtravad, Rashtra Suraksha. They say BJP led by Modi Saab is way ahead of what the Congress sentiments were. As you were discussing, 2008 blast, Delhi blast, and after that continues 2004 to 2014, various train blasts, Gateway of India blast, and BJP highlights that Batla encounter. Senior Congress leaders were weeping for the terrorist, not for the जो शहीद हमारे पुलिस के ऑफिसर हुए उस पे किसी ने आंसू नहीं बहाया, वो आतंकवाद। बीजेपी स्टैंड, बीजेपी इज हाईलाइटिंग दिस। तो सर क्या इज कांग्रेस सॉफ्ट ऑन टेरर सर? अतुल जी, ये सीनियर लीडर, ये सोनिया गांधी रो रही थी ऐसा सलमान खुर्शीद ने कहा। ये क्या है? ये देश का जो ऑफिसर वो मर गया, उसकी तो किसको चिंता नहीं है। ये सारी चीजें मुसलमान वोटों के लिए रे, दे वांट मुस्लिम वोट, और उसके लिए मुस्लिम को भी मिसगाइड करना, देश को भी मिसगाइड करना। अरे देखो इजराइल की बात है, वहां पर नेतन्याहू के साथ सारा वो देश खड़ा है। अभी 2 महीने पहले उनके यहाँ चुनाव हुए, वहां पर अलग अलग थे, मगर वहां पर टेररिज्म के विरोध में सब एक है सारा देश। और ये भी हिंदुस्तान में भी ये होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली ये हमारे ऑपोजिशन लीडर ये अपने वोट के लिए उनको ये एनकरेज कर रही है। ये गलत है। ये देश में ये सारी थ्रेट है। जब हमास कर सकता है इजराइल में, तो यहाँ पर तो वो करते ही आए हैं, और भी बड़ा करेंगे। मगर 2014 से जो हमने डिटरेंट कर दिया है, उससे काफ़ी स्थिति संभली हुई है, और मोदी जी एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं। Atul ji, you know, today BJP was highlighting through its social media that India Alliance के घटक दल फारूक अब्दुल्ला, his party, महबूबा मुफ्ती's party, PDP, they have soft corner for Pakistan, हिंदुस्तान के विरोधी है, and they have a soft corner for the stone pelters in Kashmir. That is what the BJP said. And now I think stone pelting का incident थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है। वहां पर एक कश्मीर, नया कश्मीर हो गया है। अब ये क्या करे तो क्या करे। ये हालत है महबूबा की, ये हालत है फारूक अब्दुल्ला की। ये कितनी चमचागिरी की इन्होंने पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान के पेरोल पर है ये लोग। पाकिस्तान जैसे नचाता वैसे नाच रहे हैं ये फारूक अब्दुल्ला और ये ये क्या बोलते हैं उसको, महबूबा मुफ्ती, ये नचाते थे। मगर आज जिस तरह का कश्मीर बन गया 370 जाने के बाद, हाँ छमकले किया अभी 1.5-2 महीने पहले, एक छोटा सा छमकला किया, मगर वो टेररिस्टों को भी खत्म कर दिया हिंदुस्तान की मिलिट्री ने। तो मतलब अब इंडिया कैनॉट टॉलरेट टेररिज्म एनी मोर, वी विल टेक फर्म स्ट्रिक्ट एक्शन। और इसीलिए हमास का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वी आर नॉट विद द टेरर। सारा जो वर्ल्ड में जो सोचने वाले देश है वो सारे ये हमास के विरुद्ध है, ये टेररिज्म के विरुद्ध है। ये टेररिज्म को इन्होंने पैलेस्टाइन का मूवमेंट के साथ जोड़ दिया है। ये जरूर होगा, मगर टेरर, हमको टेरर से मतलब है, तो इंडिया जीरो टॉलरेंस होगा टेरर पे। ये सारे हिंदुस्तान की जनता आज मोदी जी के पीछे खड़ी है। Fantastic, sir. Fantastic. But the only thing is, even now, within the opposition parties and even within some other people, why are they hesitant in condemning Hamas? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आज की तारीख में जो आतंकवादी संगठन है उसको आप कंडेम क्यों नहीं कर रहे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। किस तरह की सोच है ये? देश पहले, नेशन फर्स्ट, बाद में बाकी की चीजें। ये जब तक इनके मन में नहीं आएगा तब तक ये ऐसे इरेशनल
अपने धर्म के साथ जाएंगे। नहीं, जिस देश में हम रहते हैं उस देश पर खतरा है आतंकवादी का, तो उसका कंडेमेशन होना चाहिए। आई एम श्योर आज नहीं तो कल ये लोगों को मालूम पड़ेगा, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। ये सारी चीज़ें जिस तरह से इट इज़ इवॉल्विंग, लोगों को भी अभी जो विरोध कर रहे हैं, जो हमास का साथ दे रहे हैं, उनका भी सोच में फर्क आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, सॉरी प्रदीप, बिल्कुल बड़ी अजीबोगरीब बात ये है कि मुझे अभी तक याद है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, क्या नाम था उनका, वो जो द जेंटलमैन फ्रॉम केरला हु हैड फेंटेड एट एंटनी, मिस्टर एंटनी। हाँ, एक आतंकवादी हमला जब भारत के ऊपर हुआ था, उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट क्लियर इफ इट इज एक्चुअली पाकिस्तान बिहाइंड इट। उन्होंने ऐसा कहा था, याद है मुझे। हाँ, कहा था उन्होंने। तो वही सोच लेकर के अभी तक चल रहे हैं, और उनको ये लगता है कि अगर ये पाकिस्तान की तरफ नरम रहेंगे, आतंकवादी संगठनों की तरफ नरम रहेंगे, तो मुसलमान वोट इनको मिलेगा। क्या भारत का मुसलमान, क्या इनके मुताबिक भारत का मुसलमान गद्दार है? अतुल शाह? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अभी ये मुसलमान भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है, जिस तरह का अपने देश के बारे में जो चल रहा है। ये गद्दार तो नहीं बोला जा सकता, मैं अभी तो गद्दार किसी को कहूंगा नहीं। नहीं, ये समझते हैं गद्दार है ना सर, ये लोग समझते हैं गद्दार है। मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं, मोदी जी तो पहले दिन से कह रहे हैं, मोदी जी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई हिंदू मुसलमान सिख कोई नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। ये बिल्कुल सही है। प्लीज डू रिमेंबर, इट इज द सेम मिस्टर शरद पवार हु टॉक्ड अबाउट अ फिफ्थ बॉम्ब ब्लास्ट, इफ यू रिमेंबर, ऑन March 12, 1993। 4 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उनका 5वां भी हुआ है। ये तो इनकी थिंकिंग तो ऐसी है सर। टू पैसिफाई द माइनॉरिटीज, दिस इज व्हाट ही हैड टू से। मतलब किस हद तक ये गवर्नेंस करेंगे अपने फायदे के लिए, अपने मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखने के लिए, ये कोई भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये बहुत गलत है। दिस शुड बी कंडेम्ड। Rahul Gandhi ji every day talks about Jatiya Janganna. Jatiya Janganna होना आवश्यक है. If we come to power in 2024, the first thing that we are going to do is caste-based census. That's what Rahul Gandhi ji is saying. ये बैकवर्ड जाने वाले लोग हैं, ये फॉरवर्ड जाने वाले लोग नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल ये क्या है मालूम है? कांगारू है जी। राहुल गांधी ने सीखना चाहिए। कांगारू इसलिए है कि वो बैकवर्ड नहीं चल सकता है, वो आगे ही दौड़ चलता है। मगर ये किस तरह के प्राणी हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इतने बैकवर्ड जाना चाहते हैं, ये हजारों साल पुरानी उसके ऊपर जाना चाहते हैं। आज कास्ट का लाने की जरूरत क्या है? देश आगे बढ़ गया है, देश कहां के कहां पहुंच गया है। और ये बंटवाओ, ये जातियों में झगड़ा करवाओ और वोट को हासिल करो, यही इससे। मगर ये हिंदुस्तान की जनता अब ये नहीं मानने वाली है। हिंदुस्तान की जनता मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से सबका विकास, ये इंडिया दौड़ पड़ा है। और योगी जी ने जिस तरह से वहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया है, वो और सारे हिंदुस्तान में ये हवा चल गई है कि हमको बस आगे जाना है। मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास की जो राजनीति मोदी जी लाए हैं, और ये गरीबी, जन धन खाते, इतने सारे उज्ज्वला गैस, घर फ्री, पानी, ये बेसिक 4 चीजें हैं, वो सरकार ने करनी चाहिए। लेकिन तो ये सारे जातियों में बांटकर ये क्या करना चाहते हैं, मुझे जो आपने बात कही वो बड़ी जबरदस्त बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साहब, जब भी दिल्ली में, केंद्र में जब भी ऐसी सरकार आती है, मिलीजुली सरकार आती है, जैसे जो क्या नाम है, वो समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, बीएसपी हो गई, ये सब लोग जो हो गए, ये जब भी आते हैं, या जरा सी इनको थोड़ी बहुत मतलब शक्ति मिल जाती है वोटों के द्वारा, हमेशा व्हाई डू दे ब्रिंग इन कास्ट फैक्टर्स? मतलब ऐसी कास्ट है, इस किस्म की बातें होती है
कि हमें तो उसके बारे में मालूम ही नहीं है। अब ब्राह्मणों में भी 24 अलग अलग बिस्वा होते हैं, सरजूपारी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। ऑल दिस स्टफ पीपल कम टू नो एज सून एज दीस चैप्स कम इनटू पावर। मतलब ये क्या है? दे वांट टू कीप इंडिया डिवाइडेड, मतलब भारत इसी तरीके से डिवाइडेड रहे हमेशा। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं अतुल शाह साहब। नहीं नहीं, ये इनकी मन, द होल इंटेंशन इज to be in the power somehow. जी. But now at the same time what I want to tell you is the people of India are enlightened by the Modi government that the development अपने घर में अपने देश में तरक्की हो, ये लोग समझ गए। ये कितना भी ये प्लॉय यूज करने जाने वाले हैं, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ये मंडल, ये सारी चीजें जिस तरह की ये लाए हैं, ये चलने वाला नहीं है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ये देश की जनता ये मोदी जी के साथ चल पड़ी है, और ये कितना भी प्रयास कर ले ये देश को बांटने का। ये एक बार तो इनका नारा था, न जात पर, न बात पर, न किसी के बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये जात पर ये इनका विरोध कर रहा था, और ये आज वापस लेके आए। ये राहुल गांधी डेस्परेट, आप लोगों ने इनको डेस्परेट कर दिया है कि मोदी जी को कैसे हराया जाए, तो उसमें आपकी गलती है, तो और क्या करें? नहीं तो मोदी जी ने डराया नहीं, मोदी जी तो अपना काम कर रहे हैं। ये मोदी जी को हराने के लिए सारे डॉट 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 अलायंस हुआ है। अब देखिए क्या होने वाला है। डॉट डॉट, ये डॉट डॉट के बारे में कोई चिंता नहीं कर। लेकिन अतुल शाह साहब, आपने कहा, अतुल शाह साहब, सॉरी प्रदीप जी मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा, आई होप यू डोंट माइंड। अतुल शाह साहब आपने कहा कि भाई देखिए जातीय राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मानते हैं सर, जातीय राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, देखो गलत बात है 21वीं सदी। सर वी हैव रीच्ड द मून, आवर विक्रम लैंडर एक्चुअली actually rolled on the moon. We have got Correct. data from the moon which nobody else has got. We should be so proud. Chandrayaan 1, 2, 3, we got Mangalyaan 1, now the Mangalyaan 2 is getting ready. Now we are sending another spacecraft to Venus. शुक्रयान जा रहा है। अब सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सब चीजें जबरदस्त हैं, लेकिन उसके बीच में आपने मराठा आरक्षण प्रॉमिस कर दिया। अब ये हाउ विल यू गेट आउट ऑफ दिस अतुल शाह साहब? नहीं, दिस आई टेल यू, वी आर आफ्टर मराठा को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हमारी, ये जब देवेंद्र फडणवीस की भी सरकार थी, ये सारा हमने काम कर दिया था। ये महाविकास आघाड़ी ने कोर्ट में बरोबर उसको पेश नहीं किया, तो अब वो ठीक कर रहे हैं। एंड आई एम टू श्योर कि ये जो हमारी सरकार है यूटी की, ये मराठा को आरक्षण मिलेगा। मराठा आरक्षण इज द नीड ऑफ द आवर। आपने जंग, महाराष्ट्र इज बर्निंग नाउ, यू नो जारंगे पाटिल, आप देखो जिस प्रकार आंदोलन चल रहा है, पूरे मराठाओं को इकट्ठा करके पूरे महाराष्ट्र में कैंपेन चल रहा है। छगन भुजबल साहब ने आलोचना किया कि इनको फंडिंग कौन कर रहा है। जारंगे पाटिल जी इतने बड़े बड़े रैलीज कहां से एड्रेस कर रहे हैं? भुजबल साहब का कहना है कि उनका बैकग्राउंड इज वेरी नॉर्मल, ही इज यू नो टू गेट दिस काइंड ऑफ फाइनेंस। एंड देखो शरद पवार जी फ्री हो गए। Vijay Tiwari is again pulling, he says we are also going to take the OBC rally, हम भी OBC rally लेके निकालने वाले। तो अतुल जी, the whole Maharashtra is on fire right now. नहीं, ये इसके पीछे कौन है, ये सारी महाराष्ट्र की जनता जानती है। मगर सरकार अपना काम कर रही है, सरकार जो करना है, और देवेंद्र जी के ऊपर, एकनाथ शिंदे जी के ऊपर और अजित पवार, दे आर द ट्रू लीडर्स ऑफ महाराष्ट्र। वो इनको न्याय देके रहेगी। ये पॉलिटिक्स कितना भी करने को देखेंगे, कोई फायर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। जारंगे पाटिल को भी अब मालूम पड़ेगा कि कौन है सही, ये किसके हाथ में ये खेले जा रहे हैं, ये भी इनको समझ में आ गया है, और बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाने वाला है। यू नो, राहुल गांधी जी मिजोरम में पदयात्रा शुरू कर दिया अतुल जी, एंड ह्यूज रैलीज इन मिजोरम। उन्होंने कहा कि आई विल डिफेंड योर कल्चर, I will defend your religion, I will defend your tradition. That is what Rahul Gandhi is saying. तो सर क्या अतुल जी, बीजेपी is carrying these people out of culture, tradition and religion, that Rahul Gandhi ji is promising them that I will defend it. Is it under threat, sir? Rahul ji, I don't know what, every now and then he keeps on changing his statements.
एक्सक्यूज मी 2 मिनट के बाद बात करता हूँ। Please have some water, sir. No problem. या तो राहुल जी की तो बात ही क्या करे। ये देश की संस्कृति, ये देश की पूरा कल्चर बचाने का किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। ये आप कहीं भी क्या भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये मणिपुर करते रहे, अब ये मोहब्बत की यात्रा, ये नफरत की यात्रा कर रहे हैं। अब लोग उनका कुछ राहुल जी क्या बात कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है, तो देश को क्या ये समझा सकते हैं। So, you know, the Congress is highlighting BJP's report card is fantastic. Atul ji, right from national security, nationalism, Ram Mandir बोलिए, बालाकोट strike, surgical strike, UPI payments, ये national causes है। और हर घर में जैसे छत मोदी साहब ने प्रॉमिस किया 3-4 करोड़, हर घर नल से जल 12 करोड़, हर घर में शौचालय, आयुष्मान, तो all these things, your report card is fantastic, Atul ji. But मुद्रा, अभी तो आपने एक 10% योजनाएं गिनाई है। ये मुद्रा योजना, ये अपने हेल्थ कार्ड, ये सारी जो बेसिक चीजें लोगों को लगती है, और जिस तरह से देश में रस्तों का काम हुआ है, रेलवे का काम हुआ है, वंदे भारत, 200 जगह पर वंदे भारत, मैं तो दंग रह गया हूं। और अब तो स्लीपर वंदे भारत आ रही। ये अमूल्य परिवर्तन पूरे हिंदुस्तान की रेल में हुआ है। ये आज दुनिया की सबसे बेहतरीन रेलवे सिस्टम पूरे वर्ल्ड में होने जा रही है। ये विजन है मोदी जी का, और उनको साथ दिया उनके लोगों ने, उनकी सरकार ने। वैष्णव हो, जयशंकर हो, नितिन गडकरी जी हो, निर्मला सीतारमन जी हो, पीयूष गोयल हो, ये एक एक नाम मैं गिना हूं आपको। 24 घंटा ये देश के बारे में सोचते हैं, तब ये रिपोर्ट कार्ड बन सकता है 9 साल का। ये 9 साल सफल 9.5 साल हो गए हैं, और आज कोई एक क्षेत्र नहीं है जिसको मोदी जी ने स्पर्श ना किया हो। इसको लगता है विजन। और साथ में निरंतर ये नवरात्र के महीना चल रहा है, ये नवरात्र भी एक देवी की उपासना करना, ये और एक भी दिन छुट्टी नहीं लेना, ये ऐसा कोई व्यक्तिमत्व सारे दुनिया में कोई नहीं होगा। तो ये सब समझ रहे हैं, मगर ये ... ये मोदी जी को चल रहे हैं। मगर मोदी जी आप देख लीजिएगा, एक अकेला 100 पे भारी उन्होंने जो कहा है वो सिद्ध होने वाला है लोकसभा में। एंड आई एम टेलिंग यू, इन 2024 इलेक्शंस बीजेपी विल क्रॉस 350 mark on its own, and the NDA will reach 400. This is what I have to say. क्योंकि ये कितना भी कहे, देश चल पड़ा है। What about the 5 states? मोदी, sir, what about the 5 states which are going to polls in November? भारतीय जनता पार्टी will make it in all the 5 states. All 5. Because इनका झूठ, all the 5 states, I tell you. आज की तारीख है 16 तारीख अक्टूबर। आप इस दिन याद रखिएगा, हम 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब आज के दिन को याद करेंगे। क्योंकि अब लोगों ने नक्की कर लिया है। ये सर्वेज, ये वो सारा आया, उसमें भी मेजोरिटी ऑफ द स्टेट तो बीजेपी को आ रहे हैं। मगर मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ भी बीजेपी का आने वाला है, राजस्थान भी होने वाला है, मध्य प्रदेश भी आने वाला है, और मिजोरम भी आने वाला है। ये सारे स्टेट आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के पीछे, ये सारे से राज्यों की जनता उनके पीछे है। और तुरंत उसके 6 महीने के बाद लोकसभा में ये मोदी ये समझ गए, ये जितना इंडी एलायंस कर रहे हैं उससे लोग भी सतर्क हो गए कि कुछ, इसलिए उल्टा भारी मतों से हम जीत के आने वाले हैं। जबरदस्त सर, जबरदस्त। You know, अतुल जी, just going back to शरद पवार जी ने हाल ही में जो मीटिंग एड्रेस कर रहे थे एनसीपी के कार्यकर्ता, he talked about the woman missing in Maharashtra. वो गिनती उन्होंने कहा करीबन 19,000, 20,000 के आसपास women are missing in Maharashtra. And second thing, he talked about the contract labor. बोले बीजेपी here doesn't want to impose reservations, तो हर चीज कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे, पुलिस को भी कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहे हैं। बोले कि 40,000 के आसपास पुलिस के पोस्ट खाली है, और स्पेशली 10,000 वेकेंट है कांस्टेबल्स और ड्राइवर्स में पुलिस के अंदर। तो बोले कि वो भी यू नॉट, बीजेपी इज नॉट फिलिंग अप, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इज नॉट फिलिंग इट अप। So this is creating a big problem. You can't have the police department working on contract. That is what Pawar Sahib saying.
So how will you react to what Sharad Pawar ji is saying about, casting aspirations of Devendra Fadnavis ji and all the other people here? No. Sharad Pawar ji has got no other issues left now. He cannot see the progress of the state and the progress of the country. Now, in as far as the contract police is concerned, I don't know what is the policy of police. But this Home Minister, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, nobody can cast aspersions on him. He will do whatever is fit for the state. And in as far as 19,000 women are missing, I don't know the figure exactly. If it is there, even for that, this government will be doing it. But I want to ask Sharad Pawar, what happened to the suicide? Farmer suicide, what did you do for all these years? You were in government with Congress and with Uddhavji Thackeray. What have you done for the... We had done all these yojanas. देवेंद्र जी ने जल अभियान का पूरे गांव में वाटर का कंजर्वेशन का काम किया, मगर आपने सिर्फ टीका की है। टीका करने के लिए आप है, और आपके साथ है कौन अभी? द होल एनसीपी इज विद अजित पवार जी। लेकिन अनुज शाह साहब, आई हैव नोन यू अ लॉन्ग टाइम, यू आर अ वेरी रीजनेबल मैन साहब। जो एग्रीकल्चरल अग्रेरियन क्राइसिस, नॉट इवन एग्रीकल्चरल क्राइसिस, अग्रेरियन क्राइसिस जो है वो बहुत साल पहले का है सर। उसके ऊपर सब लोगों को मिल बैठ करके एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना इट विल कंटिन्यू। जो क्रॉप साइकिल है, बाकी सब चीज़ें हैं, फार्मर्स को किस प्रकार मदद करनी चाहिए। एंड बाय द वे, दिस इज माय पर्सनल बिलीफ, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। इसकी मालूम है सर, पूरी बात सुन लें। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। मुझे मालूम है कि इसके ऊपर मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं। हमारे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, सब ये कहेंगे, सर द 3 फार्म लॉज व्हिच वर रिपील्ड शुड नेवर हैव बीन रिपील्ड, दे वर वेरी गुड, लेट्स बी वेरी क्लियर। आज अगर वो फार्म लॉज होते, फार्मर्स वुड हैव बीन एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस एनीवेयर, कहीं पर भी जाके कुछ भी कहीं पर भी बेच सकते थे। उनके ऊपर था क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना, किस साइकिल में किस तरीके से काम करना है। अब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी has, you have established a new paradigm in terms of communication. आप जितना बढ़िया कोई कम्युनिकेटर नहीं है भारतीय जनता पार्टी जितना, तो ये 3 फार्म लॉस पे हम लोग फेल कैसे हो गए? मैं हम लोग बोल रहा हूं क्योंकि हियर आई एम स्टैंडिंग विद यू। ये बताएं सर कि ये अपनी बात हम लोग किसानों को समझा क्यों नहीं पाए? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात जी। जो ये 3 लॉस थे वो इतने प्रोग्रेसिव थे, एग्रीरियन क्राइसिस अपने देश की ये सारी चीजों को स्पर्श कर रही थी, मगर जिस तरह के एंटी इंडिया फोर्सेस उनके पीछे लग गई फार्मर्स की, तो हम जब कितना भी समझाए वो समझने को तैयार नहीं थी। आखिर में गवर्नमेंट हैड टू सकम। ये बिल्कुल सही है आपने, ये तीनों कानून जो फार्म लॉस के लिए लाए थे वो सचमुच में स्वामीनाथन जी जो अभी गुजर गए थोड़े दिन पहले, उन्होंने खुद ने कहा था कि कितने बढ़िया तीनों लॉज हैं और ये देश का दुर्भाग्य है, मगर हम इससे बैठने वाले नहीं हैं। इन द न्यू गवर्नमेंट डेफिनेटली मिस्टर मोदी विल एड्रेस टू द अग्रेरियन क्राइसिस, क्योंकि उनको फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है, डबल करनी है, उनके पीछे वो पड़े हैं। एंड देखो 10 काम हमने किए हैं, एक आधा काम कम रह गया है, वो भी उसको एड्रेस होगा। मेरे को नहीं हुआ ऐसा नहीं, मगर उसमें जो कमियां है वो जो आपने जैसे कहा कि हमको ये वापस लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, ये सारी चीजें भी आगे चल के एग्रेरियन क्राइसिस को भी हम दूर करेंगे, इतना मैं मेरे लीडर्स को जानता हूं, मेरी सरकार को जानता हूं। प्रॉब्लम इज, आई टेल यू, वी आर राइट नाउ इन 2023 सर, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट बाय 2029 India will be facing a disaster in terms of the agrarian crisis. जो हम लोगों की सॉइल फर्टिलिटी है, जो चीज़ नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराइए, सॉइल फर्टिलिटी कराइए, सॉइल बचाइए, ज़मीन बचाइए, अपनी ज़मीन की का जो उपजाऊपन है उसके ऊपर ज़रा काम कीजिए। सर, बाय 2029 वी आर गोइंग टू फेस अ ह्यूज क्राइसिस अनलेस एंड अंटिल वी डू समथिंग ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। और ये 3 फार्म लॉज जो हैं, इसके ऊपर अमेंडमेंट हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। आई विश वी हैड डन इट, बट एनीवे नाउ आफ्टर द नेक्स्ट लोकसभा। लेकिन फिलहाल अतुल शाह साहब, आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ आपको वो सब कुछ दे
जो आज तक आपने अपने लिए मांगा है और देश के लिए मांगा है। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को नवरात्र के ओकेजन पर सर, प्लीज। ने सचमुच ये नवरात्र, ये माँ अम्बे की उपासना का जी ये त्योहार है। जी ये शक्ति और भक्ति, ये दोनों चीजों का, ये माँ अम्बे को, और मेरे से ज्यादा अम्बे माँ का भक्त कौन हो सकता है। मुझे तो स्वयं माँ अम्बे ने आकर मेरी चिट्ठी निकाली थी। एक 7 साल की बच्ची, राजीव जी, मेरा परिणाम आपको मालूम है। आई वन बाय अ वोट, अ लॉटरी, एंड आई वॉज प्रेइंग। मैं और मेरी वाइफ दोनों घर पर, वो और मैं ये काउंटिंग सेंटर पर 3 घंटा ललिता सहस्त्र नाम, ये इतना पावरफुल साउथ का 1000 नाम का ये स्तुति है माता की, ललिता सहस्त्र नाम। आई वॉज लिस्टिंग टू इट। एक ही मिनट में खत्म करता हूँ। मेरे को जब इक्वल वोट हुए, मैंने माँ को कहा कि माँ, मैंने बहुत संघर्ष किया है, मुझे इसमें से निकाल दे। और 7 साल की लड़की आई, अजय मेहता जी ने वो लड़की के हाथ से चिट्ठी निकाली, उसमें नाम अतुल शाह आया। मुझे तो लगता है स्वयं माँ अम्बे मेरे लिए आई, इसलिए मैं बिल्कुल सही है सर। ये सामने जय माता दी। जय माता जी, जय माता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। तो आप फास्ट कर रहे हैं, आप उपवास पर हैं या नहीं है, मतलब आर यू फास्ट? नहीं, मैं उपवास पर नहीं हूँ, मगर मैं एक दिन उपवास जरूर करता हूँ, 8 को। तो आज इस शो के बाद आप जाकर के डांडिया खेलेंगे सर? या बिल्कुल, गरबा में जाता हूँ, डांडिया में जाता हूँ। कहाँ पर और सर? किस जगह पे? अभी अलग अलग जगह पर जाना है। अब मेरे पास तो 3-4 इन्विटेशन है। हमारे भार्गव पटेल ने सहारा स्टार में ऑर्गेनाइज किया है, वहां शायद जाने का प्रोग्राम है। कल रात को मैंने गुजरात गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कार्यक्रम वाइब्रेंट नवरात्र मैंने देखा जी। और वो जिस तरह का मोदी जी ने वो प्रथा चालू की थी जब वो मुख्यमंत्री थे, आज भी भूपेंद्र पटेल और वहाँ के राज्यपाल ने वो जो कार्यक्रम हुआ था, सचमुच में देखने लायक था। जो गुजरात सरकार ने अपना ऑफिशियल वाइब्रेंट नवरात्र हो रहा है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। Once again, sir, all the best to you, all our best wishes with you on the occasion of Navratri. Thank you very much, sir, for wishing all our viewers, and we wish you the same. Jai Mata Di, आपको भी, सारे दर्शकों को भी, thank you. That's really wonderful. So Navratra is on. It's on. It's on for everybody, and a great time of the year, a wonderful time of the year. The whole country changes. It's changed. But I really and truly wish what Mr. Eknath Shinde has promised. I hope he actually implements it. That we people should be able to relaxations. Yeah, people should be able to do the dandiya at least till 12 o'clock. रात के midnight तक तो करने दो यार, क्या है ये 10 बजे की डेडलाइन, मतलब मेरी समझ के बाहर है. And at the moment with us after a